to our YouTube class, and in this video we will study about the why democracy. From starting till now we have studied about the what is democracy. डेमोक्रेसी क्या है ये हमने देखा था. उसमें हमने देखा what are the features of the democracy. So here I have written the 4 features of the democracy. It is a very important, so I am repeating again and again. मैं बार बार आपको बताते जा रही हूँ कि features of democracy is very important, और इसकी वजह से मैं इसका रिवीजन भी बार बार ले रही हूँ. इसके features में हमने फर्स्ट देखा था कि in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people. Means if that country is a democracy country, that time it is necessary those people who are elected or those representative who are elected by the people, they have the power. उनके पास पावर होना चाहिए फॉर द डिसीजन मेकिंग का पावर होना चाहिए. इफ दे हैव पावर दैट टाइम वी कैन से दैट कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एंड अमॉन्ग दैट वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ द पाकिस्तान का एग्जांपल हमने देखा था कि जनरल परवेज मुशर्रफ एंड मिलिट्री ऑफिसर्स hold the power, and all other rest representative have very little power, but the final decision in the hand of that Pervez Musharraf and the military officers. Okay. Then second is a democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. Means if that country is a democratic country, that time there is a election also necessary, as well as there is a chance of the ruling party of the losing. Means उनका क्या होना चाहिए, चांस होना चाहिए कि वो हारे भी, ये नहीं कि हमेशा वही जीत कर आए. बट we did not see in the example of the China and the Mexico. China का example देखा था. China there is only communist party, Chinese communist party, and they have given the chance only those member who belong to that communist party. So there is no chance of losing. वहाँ पे losing का कोई chance ही नहीं था, हमेशा communist party जीत कर आती थी. Same thing happened with the Mexico. There is a PRI party, and the PRI party used dirty tricks to win the election. Means there is also no chance, and there is also no free and fair election. ये free and fair election नहीं है, because they forced the people or forced to government officers to give the vote only the PRI party. तो यहाँ पे free and fair election भी नहीं है, no chance of losing का कोई chance भी नहीं है. ये हो गया second features of the democracy. The third one, in a democracy each adult citizen must have one vote, and each vote must have one value. I have told you, and I have given the example of the French Revolution. There are the third levels of third categories of people, and they were not rights to give the vote, but when they had a struggle, after that they got the chance to give the vote, but their vote was not equal value, just like a higher category. तो हर एडल्ट सिटीजन को राइट्स है वोटिंग देने का, और एक वोट को एक पर्सन के एक वोट को एक वैल्यू करके देना चाहिए. बट वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ द सऊदी अरेबिया. There the women were not allowed to give the vote. Then we have seen the example of the Estonia. There is a Russian minority find difficult to give the vote. Then same thing we have took the example of the Fiji, indigenous Fiji. So vote are more valuable than the Indian Fiji. Then last one is a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizen rights. If that country is a democratic country and there is a representative, that representative have some power, उनके पास कुछ power है, but they use their power according to constitution, not according to their own will. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर का यूज करना चाहिए, नहीं कि मुझे लग रहा है कि मेरे पास पावर है तो मुझे पर्सनल यूज करना चाहिए. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, ये हमने देखा था कि लोगों ने क्या किया था, अमेंडमेंट किया गया था अपने अकॉर्डिंग, किसके तरीके से, अपने जानू पीएफ पार्टी के बारे में हमने देखा, जिम्बाब्वे का एग्जांपल देखा. देयर इज द रॉबर्ट मुगाबे, एंड रॉबर्ट मुगाबे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू हिज फेवर. अपने फेवर से उसने चेंज कर लिया था. ही यूज डर्टी
डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन जीतने के लिए उसने डर्टी ट्रिक्स यूज किया था। ही हरेश द वर्कर अपोजिशन वर्कर्स को वो हराश करता था। एंड देन ही बैन ऑन द मीडिया, मीन्स टेलीविजन रेडियो में उसने बैन लगा दिया था। देन ही डिड नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द जुरिडिक्शन के रूल्स और रेगुलेशन भी। तो यहाँ पे वही बताया गया कि अगर वो डेमोक्रेटिक रूलर्स है तो दैट टाइम दे हैव द सम लिमिट्स set by constitutional law and citizen rights, as well as we have to respect the citizen because citizen is the base of that country or that state. But हमने देखा कि जो रॉबर्ट मुगाबे था, he was a freedom fighter, मीन्स जो ZANU-PF पार्टी थी वो इंटरनेशनल पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल दिया था। लेकिन रॉबर्ट मुगाबे ने लोगों के साथ बहुत गंदा बिहेवियर किया था। ही डिड नॉट रिस्पेक्ट द सिटीजन ऑफ देयर कंट्री, वो अपने कंट्री के सिटीजन का रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो सो दैट कंट्री इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये है, अगर वो कंट्री, अगर आपको ये सारे फीचर जिस कंट्री में दिखते हैं तो हम उस कंट्री को कहेंगे दैट कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, then let us see our today's subtopic, and that is why democracy. Here is also conversation between the Ligdo madam and her students, which we have seen in the what is a democracy. Democracy में हमने देखा था कि Ligdo madam, Mary and other students was in a argument. They were doing the argument on the democracy. They find out the definition of the democracy की उन्होंने definition किया है, अलग अलग तरीके से उन्हें बताया है कि किसी ने कहा है कि of the people, by the people, for the people। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमें ऑलरेडी मिली है, तो भी हम डेमोक्रेसी मीनिंग क्यों ढूंढ रहे हैं। फिर मैरी का कहना था कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी कंट्री, सो व्हाई वी डिफाइन नाउ इट। जब हम इसमें रह ही रहे हैं, बार बार हम डेमोक्रेसी का यूज़ कर रहे हैं, अब हमें क्यों जरूरत पड़ रही है उसे डिफाइन करने की। सबने अपने अपने तरीके से डेमोक्रेसी के ऊपर क्या किया था, डिस्कशन किया था। सेम वो व्हाट इज डेमोक्रेसी के ऊपर था, व्हाई डेमोक्रेसी के ऊपर एक डिस्कशन लिया गया है। एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट इन द मैडम लिग्डो क्लास, उनकी क्लास में कुछ डिस्कशन चला। शी हैड फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी। उन्होंने अपना जो प्रीवियस सेक्शन है व्हाट इज अ डेमोक्रेसी दैट वाज कंप्लीटेड, एंड देन शी सेड दैट टू देयर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी आइडिया और इफ यू हैव एनी कैन यू सेड दैट और शुड यू एग्री विद दिस डेमोक्रेसी। आप इस डेमोक्रेसी के साथ एग्री होना चाहिए, आपको होना चाहिए। स्टूडेंट्स इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो एवरी स्टूडेंट्स हैड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। मीन्स अगर हर कोई डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए, ऐसा मैडम मेरी का कहना था, सॉरी लिग्डो मैडम का कहना था। तो इसको हम शॉर्टकट में देख लेते हैं कि बच्चों लोगों के बीच में क्या डिस्कशन हुआ था। जो इट्स नॉट अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि आपको डिस्कशन पूछा जाता है एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए कि वाई डेमोक्रेसी और कैसा इसमें डिबेटिंग हुई है। तो योलंडा से दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी। Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Is it obvious that democracy is the best? Do you need to debate this? अब योलंडा है, उन्हें कहा है कि हम डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि हम डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट, हर जगह लोग डेमोक्रेसी को चाहते हैं। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर बिकम, जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं थी वो भी अभी डेमोक्रेटिक बन गई है और लोगों ने इन्हें बहुत अच्छा फॉर्म करके एक्सेप्ट किया है। तो क्या हमें वी डू नीड टू डिबेट दिस, हमें इसमें डिबेट करने की जरूरत है। तो टैंकिनी जो है वो कहते हैं, बट लिग्डो मैडम सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट। लिग्डो मैडम का कहना है कि हमें सिर्फ वो चीज़ इसलिए एक्सेप्ट करना जस्ट बिकॉज इट इज़ अ फेमस, ये फेमस है, और जस्ट बिकॉज पीपल एक्सेप्टेड इट, लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है करके ही हमें ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये वी यूज़ आवर माइंड, हमें अपने माइंड का यूज़ करना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वाई डेमोक्रेसी की मीनिंग ढूंढना बहुत जरूरी है। जेनी सेड दैट यस इट्स एक्चुअली अ रॉन्ग पाथ। ये क्या है, रॉन्ग पाथ है कि हम क्या
कर रहे हैं व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्राउट टू आवर कंट्री, क्या हमारे डेमोक्रेसी ने क्या हमारे कंट्री में लाया है, कि डेमोक्रेसी में अगर इफ दिस कंट्री इज अ डेमोक्रेसी तो हियर इज अ नो पावर्टी, यहाँ पे पावर्टी नहीं है, यहाँ पे पावर्टी को बिल्कुल भी नहीं है। सो डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पावर्टी इन द कंट्री, हमने देखा कि 7 डिकेड्स ऑफ द कंट्री, यहाँ पे बहुत सारी पावर्टी है। तो जो रिबियंग है उनका कहना है बट व्हाट वाज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट, अब डेमोक्रेसी ने इसने क्या करना चाहिए कि यहाँ पे पावर्टी है तो हम उसको डेमोक्रेसी के ऊपर ब्लेम क्यों दें। डू वी हैव पावर्टी बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, यहाँ पे पावर्टी इसके लिए क्योंकि हम डेमोक्रेटिक है, और डू वी हैव अ पावर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, या फिर हम डेमोक्रेसी बनने जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है कि हम डेमोक्रेटिक करके हम पावर्टी में जी रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक बनने जा रहे हैं करके हम पावर्टी में जी रहे हैं। तो जेनी से वॉट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, जो भी हो इसमें डिफरेंस है। द पॉइंट इज दैट दिस कैन बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो भी क्या होगा हम इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट दी कोस, मीन्स यहाँ पे क्या होता है अराजकता होती है, एंड देयर इज नो स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है, करप्शन होता है, हाइपोक्रेसी होती है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसलिए जेनी कहती है इट्स नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। प्योर मीन्स सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, तो हमें इसमें क्या इंस्टेड करना चाहिए, गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, क्या हमें ब्रिटिश रूल में चले जाना चाहिए, फिर से हमें डिक्टेटरशिप को उठा कर लाना चाहिए, मोनार्कीशिप सिस्टम को उठा के लाना चाहिए, फिर से हमें मोनार्की सिस्टम में ही जीवन बिताना चाहिए। तो रोज आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट इज दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, नहीं ऐसा नहीं, ये कंट्री को स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शन एंड पार्लियामेंट, कुछ लोगों को तो इलेक्शन और पार्लियामेंट पसंद ही नहीं आता है। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर, ही शुड बी एबल टू वॉट एवर इज नीडेड इन कंट्रीज, मीन्स एक के हाथ में पावर रहता है और वो क्या करता है अपने हिसाब से पावर को यूज करता है अपने खुद की नीड के तरीके से। सो द अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पावर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, तो क्या वो अकेला ही इस पावर्टी को कंट्री से निकाल सकता है या फिर वो करप्शन को रिमूव कर सकता है अकेला। तो समवन शाउटेड दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, नो दैट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, दैट इज अ डिक्टेटरशिप, बिकॉज इन अ डिक्टेटरशिप ओनली वन मैन आर्मी इज देयर, वहाँ पे एक ही पावरफुल रहता है, एंड ही मेक अ रूल्स अकॉर्डिंग टू हिज नीड, वो क्या करता है अपने नीड के तरीके से रूल्स बनाता है, और वो अकेला करप्शन को कोई दूर नहीं कर सकता, वो अकेला पावर्टी को कोई दूर नहीं कर सकता। सो इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक, इट इज अ मोनार्की। देन व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस पावर्स ऑफ हिमसेल्फ एंड, क्या होगा अगर वो व्यक्ति ने पावर्स का खुद के लिए खुद के परिवार के लिए यूज किया। व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ, वो खुद ही करप्शन करेगा। तो रोज आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। रोज का कहना था कि जो रोज ने कहा था कि नहीं अकेला पर्सन होना चाहिए, उसके हाथ में वो अकेला होता है तो उसके हाथ में पावर्स होते हैं, वो सिंसियरली वर्क करेगा, वो ऑनेस्ट होगा, वो स्ट्रॉन्ग लीडर होगा, बट इट इज़ नॉट अ पॉसिबल, उसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे ही नहीं। अगर एनी वन पर्सन होल्डिंग अ पावर दैट टाइम दैट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, बिकॉज द फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट the power is shared between the different organs which you will study in your 10th class चैप्टर पावर शेयरिंग में आप देखोगे, फेडरलिज्म में देखोगे, सिविक्स के चैप्टर में कि डेमोक्रेसी की कंडीशन ही वही होती है कि पावर शेयरिंग। व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? अ डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर द पावर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो इसीलिए हम इस सिस्टम को डेमोक्रेसी तो कहेंगे ही नहीं, बट दैट इज नॉट फेयर। यू आर कंपेयरिंग, ये अच्छा नहीं है, इट इज नॉट फेयर। यू आर कंपेयरिंग रियल विद द आइडल। आप रियल को किससे कंपेयर कर रहे हैं? आइडल से। सो कंपेयर द आइडल विद आइडल एंड रियल विद रियल। ये किसका कहना था? कोई का कहना था कि आपको आइडल को आइडल से कंपेयर करना है, रियल को रियल से कंपेरिजन करना है। सो गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ द डिक्टेटरशिप इन रियल लाइफ।
जाओ और डिक्टेटरशिप का रिकॉर्ड देखो कि रियल लाइफ में डिक्टेटरशिप कैसे थे। दे आर मोस्ट करप्टेड, वो बहुत करप्टेड थे, सेल्फिश थे, ब्रूटल थे, अत्याचारी थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किया था। इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड व्हाट इज वर्स यू कांट इवन गेट राइट ऑन देम। मीन्स ये बहुत गलत बात है और अभी भी देखा जाए तो हम उसके ऊपर अभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते। तो इट इज अ डिस्कशन ऑन द वाई डेमोक्रेसी एंड दिस डिस्कशन वाज लिसन बाय द मैडम लिग्डो सिंसियरली सुन रही थी एंड देन शी शेयर्ड दैट आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज सीइंग यू टू discuss on a why democracy and all are involved in that discussion and all are patiently listen to each other। हर कोई क्या कर रहा था, एक मेरे को अच्छे से सुन रहा था। that is for you to settle but I did felt that you all wanted to speak your mind। यानी हर कोई अपने अपने तरीके से बोल रहा था। तो you may have felt very bad if someone interfere in your टाइम, यानी हमें बहुत बुरा लगता है अगर कोई हमारे समय में इंटरफेयर करता है तो हमें बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि ये भी हमारे एक राइट्स है कि अगर हम कोई बोल रहे हैं, हम कुछ फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट टाइम वी हैव टू राइट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, वी हैव राइट टू एक्सप्रेस आवर वर्ड्स। तो ये सारी चीजें किस में होती है? डेमोक्रेसी कंट्री में होती है। वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक एंड इज दैट अ गुड आर्गुमेंट फॉर अ डेमोक्रेसी? आपने ये जो आर्गुमेंट किया है, इज इट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी? तो इस तरीके से डिस्कशन हमने डेमोक्रेसी के ऊपर देखा है। देन आपको क्या करना है, प्लीज रीड दैट डिस्कशन, इट इज इनहांस योर एक्स्ट्रा क्वालिटी का एक्स्ट्रा नॉलेज का बढ़ाएगा ये, इसीलिए हमने ये डिस्कशन लिया है। देन आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब अभी तक के तो हमने डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये सारा देखा है। अब डेमोक्रेसी के ऊपर आर्गुमेंट किस टाइप से किए गए हैं कि डेमोक्रेसी में क्वालिटी तो है बट ड्रॉबैक्स भी है डेमोक्रेसी में। तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी? लेट अस सी। ओके, तो नेक्स्ट सब टॉपिक जो किसके अंदर है, वाई डेमोक्रेसी का नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू फॉर 5 मार्क्स। इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन द मेजर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द मेजर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो हियर आर रिटन 6 पॉइंट, you have to write these 6 points one by one and then you will explain it. Instability, low morality, delay in decision making, bad decision, corruption, illiterate and political unconscious voters. So let us see one by one. Instability तो क्या है? Under democracy leaders and political parties keep changing। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है और लीडर्स होते हैं वो हर 5 साल में या उसके पहले भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो हियर इज अ स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी है कि नहीं, कभी भी लीडर चेंज होते हैं और कभी भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है। सो द इंस्टेबिलिटी इज अ ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहती। देन लो मोरालिटी, यहाँ पे क्या होता है, द पीपल्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड होकर आते हैं एंड दैट टाइम दे आर यूजिंग they were using so many dirty tricks का यूज करते हैं and there are the political competition and power play। मिस पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, जो पावरफुल होता है उसकी जीत हो जाती है। तो जो लो मोरालिटी, इससे क्या होती है, मोरालिटी डाउन होती है और इसी के लिए यहाँ पे लो मोरालिटी इज ऑल्सो द ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। क्वेश्चन भी पूछ सकता है, राइट ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इनस्टेबिलिटी देख लिया, लो मोरालिटी देख लिया, देन डिले इन डिसीजन मेकिंग। We have seen that in democracy all the power is distributed among the different organs. So if you have any problem, that time if you want to sort out that problem, a solution of that problem, that time you take the approval of the different organs.
आपको अलग अलग ऑर्गन से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। ऑल द डिसीजन आउट टू बी अप्रूव्ड एंड डिस्कस इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अप्रूव किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। देन द सो मेनी ऑफिशियल्स आर इंक्लूड इन दैट डिसीजन। बहुत से ऑफिसर्स इंक्लूड होते हैं, मीन्स दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर। एक में के ऊपर, एक ने डिसीजन दे दिया, उसके बाद दूसरे डिसीजन की जरूरत होती है, तीसरे के डिसीजन की जरूरत होती है। सो हियर इज अ डिसीजन मेकिंग इज अ लेंथी। इसके लिए क्या होता है, डिसीजन मेकिंग लेंथी होता है। अगर वहाँ पे एक ही पर्सन है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की सिस्टम है, तो डिसीजन लेने में कोई भी प्रोसीजर लेंथी नहीं होगी। उसको पता है कि मेरा डिसीजन अबाइड है, आपको मानना ही है, तो वो डिसीजन तुरंत में सुना देता है। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट वाइज टीचर। अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज टीचर, आई एम अ टीचर ऑफ SST। अगर आपसे रिगार्डिंग SST से प्रॉब्लम होगा तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको तुरंत में उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। बट योर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू स्कूल, स्कूल से प्रॉब्लम है, अदर सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, दैट टाइम आई नीड टू टेक अ डिसीजन और अ सजेशन ऑफ दैट टीचर ऑफ द स्कूल। स्कूल से सजेशन लेना या उनसे पूछना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस समय क्या होगा, डिसीजन लेंथी हो जाएगा। अगर मेरा पर्सनल डिसीजन है तो मैं तो आपको तुरंत मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी मेरे सब्जेक्ट से। बट आपको स्कूल के अदर सब्जेक्ट से रिलेशन प्रॉब्लम है तो उस समय मुझे अदर से पूछना बहुत जरूरी होगा, अदर टीचर से, तो उसमें डिसीजन क्या होगा, लेंथी होगा। सेम डेमोक्रेसी में यही होता है कि ऑल आर डिपेंड ऑन ईच अदर एंड दैट टाइम इट इज अ डिले प्रोसीजर। देन बैड डिसीजन क्या हो जाता है, बैड डिसीजन एज मोस्ट ऑफ द लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता, लीडर्स को, लीडर्स तो बन जाते बट दे डोंट नो द मेन प्रॉब्लम ऑफ देयर पीपल, उनके लोगों का क्या प्रॉब्लम है। सो उस समय वो डिसीजन जो लेते हैं वो बैड डिसीजन हो जाता है। और हमें पता है कि डेमोक्रेसी में वेराइटी ऑफ लोग रहते हैं, वेराइटी ऑफ पीपल, वेराइटी ऑफ देयर थिंकिंग, वेराइटी ऑफ देयर मेंटालिटी, एंड वी आर नॉट एबल टू फुलफिल ऑल द पीपल। हर किसी को हम खुश नहीं कर सकते। हो सकता है कोई डिसीजन किसी फ्यू पर्सन के लिए वही डिसीजन अच्छा है और फ्यू पर्सन के लिए वही डिसीजन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमेशा बैड डिसीजन कहा जाता है। करप्शन, करप्शन तो बिल्कुल डेमोक्रेसी में, बिकॉज हमने जस्ट अभी बताया कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं। फॉर इलेक्शन द पीपल यूज द डर्टी ट्रिक्स, दे यूज द मसल पावर, मनी पावर टू विन द इलेक्शंस, एंड इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे करप्शन बढ़ जाता है। इलिटरेट एंड पॉलिटिकल अनकॉन्शियस वोटर्स, तो अब क्या होते हैं, बहुत से जगह क्या होता है, इन सम मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज वोटर्स आर इलिटरेट। बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज में वोटर्स देखा जाओ तो इलिटरेट है, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे लिए कौन सा लीडर अच्छा है या वो हमारे लिए कोई काम कर सकता है। और पॉलिटिकली अनकॉन्शियस, वो वोटर्स क्या रहते हैं, पॉलिटिकली अनकॉन्शियस रहते हैं, उन्हें कुछ भी पॉलिटिक्स का पता भी नहीं रहता। और इसकी वजह से क्या होता है कि सो दे इलेक्ट रॉन्ग कैंडिडेट, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, रॉन्ग कैंडिडेट को इलेक्ट करके लाते हैं, जो उनका डिसीजन, उनकी वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसी में रॉन्ग डिसीजन रॉन्ग लीडर्स रूलर्स बन जाते हैं, और उसकी वजह से जो डिसीजन होता है प्रॉपरली नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, और द डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एमर्जिंग इन द मॉडर्न टाइम्स, स्टिल द शॉर्ट कमिंग्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। जस्टिफाई करके आपको आता है, या राइट एक्सप्लेन द मेजर आर्गुमेंट्स ऑफ द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, instability, low morality, delay in decision making, bad decision, corruption, illiterate and political unconscious voters. Question 1 marks के लिए you have to write only points, but the question can come for 5 marks. That time you have to write points and explain it. Okay, so in this way we have completed our this topic. Then we will meet to our next video with new subtopic, and that is the arguments for democracy. अब डेमोक्रेसी के लिए क्या आर्गुमेंट्स किए गए थे, कैसे आर्गुमेंट्स किए गए थे, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।